Hello students, today we will start doing the revision of chapter planning, and here we will discuss about the different types of plans. Okay, there are different types of plans. Generally we categorize them into two different types. That's one is your standing plans and other is your single use plans. Standing plans generally are those plans which are being repetitively used. Okay, and others are those we talk about, that is your single use plan. Single use plans are those which are used only for once, and then they are for the next uh, purpose we'll just make a fresh new plans. Okay, so now this is the planning part third, where we will do different types of plans. So now different types of plans, as I've told you, there are two types: as standing plans or single use plans. Standing plans which are used repeatedly in similar situations are called standing plans or repeated use plans, like objectives, strategies, policies, procedures, rules, etc. They are your standing plans. And then single use plans which are formulated after every use are called single use plans. हर एक यूज के बाद नया जब यूज के लिए चाहिए तो उसको नए रूल्स, नए प्लान्स फॉर्मुलेट होंगे। आपके प्रोग्राम्स एंड बजट्स जो है हमारे सिंगल यूज प्लान्स होते हैं। हर बार नए बजट बनता है। किसी भी एक कोई प्रोग्राम अगर कंपनी ने लॉन्च किया है तो उस नया प्रोग्राम के लिए नए आपके जो है नया प्लान बनेगा, राइट। सो वेरियस प्लान्स कैन बी अरेंज्ड इन hierarchy because a higher level plan generates lower level plans. जब हम प्लान्स हैं तो प्लान्स एक बहुत सारी तरह के प्लान्स हैं और इन प्लान्स को एक हिराकी में रखा जाता है जनरली, क्योंकि हायर लेवल प्लान्स लोअर लेवल प्लान्स को जनरेट करता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेट होता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, तो ऑब्जेक्टिव आपका हाईएस्ट लेवल प्लान है। उसके बाद आपके स्ट्रेटजीज आती हैं, स्ट्रेटजीज के बाद पॉलिसीज, देन प्रोसीजर्स, then rule methods, then programs, and then budgets. Okay, then objectives. What is an objective? Objective क्या है? जो end है या purpose है, result जो कि चाहिए अचीव करना है और जो गोल है कंपनी के, that is called to be objective. Okay, जो भी एक्टिविटीज होती हैं कंपनी के, जितने भी फंक्शंस होते हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव के सराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ पहुंचना है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग जो होती है या बिगिनिंग जो होती है प्लान की, वो ऑब्जेक्टिव सेट करने से शुरू होती है। ऑब्जेक्टिव जो है मेन पर्पस बताता है, एम बताता है और बताता है कितने टाइम पीरियड में उसको कवर करना है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, मतलब आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी एक टाइम में चूज कर सकता है आपका। जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ ग्रोथ है, सर्वाइवल है, राइट, सर्विसेज टू सोसाइटी है। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ objectives, and the multiplicity of objective creates a problem of fixing priority between different, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। और फिर क्या है, जो प्रायोरिटीज हैं आपकी जो है चेंज भी हो जाती हैं टाइम के हिसाब से। लाइक इन द बिगिनिंग जो है सर्वाइवल होता है कंपनी का, फिर उसके बाद क्या होता है उसका प्रॉफिटेबिलिटी, देन ग्रोथ। ठीक है, और जब ग्रोथ भी हो जाती है तो सर्विस मोटिव आपका जो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हो जाए। So the objectives, they are the end or results to be achieved. All the activities of an organization and all functions of management are directed towards the objectives. Objectives indicate the destination of the organization. The process of planning begins with the setting of objectives. Objectives may be defined as a purpose or aim which an organization wants to achieve over different time periods. A business enterprise has multiple or several objectives such as survival, profit, growth, services to society, etc. The multiplicity of objectives creates the problem of fixing priority between different objectives, and the priorities may change over time as well, as we have discussed right now.
नाउ व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड इन ए टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए कि क्या कितने ऑब्जेक्टिव्स हमने कहा बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो टाइम बाउंड होने चाहिए कि साल का प्रॉफिट क्या है, ठीक है, 1 महीने का प्रॉफिट क्या है, ऐसे ही ग्रोथ कितने टाइम में लेनी है, विद इन 2 years दिस मच ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी डन, राइट। ऑब्जेक्टिव क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक इन द नेचर मीन्स आपका क्या है कि ग्रोथ करनी है, सो व्हाट इज द ग्रोथ, कि whatever the assets are there, the doublet of that wealth is to be done, राइट। उससे 150% करना है, 200% करना है, तो इट शुड बी स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीवेबल और फिजिबल। अचीवेबल होने चाहिए, जिसको अचीव कर सकते हैं, या जो फिजिबल है वो होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव लाइफ कि वी विल सेट होम्स देयर ऑन मार्स, दैट कैन नॉट बी अचीवेबल, फिजिबल नहीं है। तो आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं मार्स पे, तो दैट इज नॉट अचीवेबल एंड नॉट फिजिबल, सो दिस कैन नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। सबसे पहला मेजरेबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसको चेंज किया जा सके। लेट्स सपोज यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय 100%, तो अगर आपको लग रहा है कंपटीशन ज़्यादा है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप 100% नहीं, सिर्फ 50% ही प्रोग्रेस ले सकते हैं। सो दैट विल बी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, जो है अचीवेबल है, मेजरेबल है, ठीक है। इट शुड बी मेजरेबल, अचीवेबल और वी सेड इट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल हो गया, और डायनामिक यानी कि समय के हिसाब से बदल जाए। मेजरेबल हुआ कि इंक्रीज इन 150%, दैट इज अ मेजरेबल वन। ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू सिंगल एक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिव है हर एक एक्टिविटी के लिए अलग है। जैसे कि एग्जांपल है इंक्रीजिंग एनुअल रेवेन्यू बाय 10%, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट बाय 15%। सो सिंगल एक्टिविटी के लिए अलग अलग, दो एक्टिविटीज हैं, दोनों के लिए अलग अलग आपने सेट करें। देन इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग एंड एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Now the next plan is a strategy. Strategy क्या है? Strategic हमारे comprehensive एंड इंटीग्रेटिव प्लान होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि डिजायर्ड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होने वाला है। जनरली स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो जो सिचुएशंस जो है आपकी जो अचानक कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, उन सिचुएशंस को कैसे डील करना है, या आपकी कंपिटिटर्स की जो आपकी कंपिटिटर्स के अगेंस्ट किस तरह से सर्वाइव करना है। दिस आर व्हाट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी क्या है कि अगर आपके कंपिटिटर्स ने प्रॉफिटेबिलिटी अपनी ग्रोथ रेट रखा है 200%, तो किस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप हमें अपनी स्ट्रेटजीज भी सेट करनी होगी। अगर वो कस्टमर्स को इंड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा, राइट, कस्टमर्स के लिए कुछ ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में किस तरह से फ़र्क करें। जैसे आपका एप्पल की स्ट्रेटजीज को देखकर आपके सैमसंग ने भी अपने मोबाइल स्ट्रेटजीज को चेंज किया कि उन्हें जो है एंड्रॉयड के साथ साथ और फैसिलिटीज देनी है, ताकि जो है आपका प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके, ठीक है। तो अपने सर्वाइवल के लिए और अपने कंपिटिटर्स के साथ किस तरह से वर्क करना है, या फिर आपकी अनफोर्सीन एक्टिविटीज आ जाती हैं, अनफोर्सीन कंडीशंस आ जाती हैं, तो उससे अपने आप को सेव करने के लिए क्या करना है, दैट इज व्हाट कॉल्ड टू बी स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी जनरली क्या है कि वो बार बार चेंज हो जाती है, राइट। अगर आपके कंपिटिटर्स की पॉलिसी स्ट्रेटजी चेंज हुई तो आपको भी चेंज करनी पड़ेगी, और अगर कोई अनफोर्सीन आपकी सिचुएशंस आती है तो उसमें आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी है, फिर कोई और नई सिचुएशन आएगी तो उसमें आपको फिर कुछ और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सो स्ट्रेटजी हर बार चेंज हो सकती है। स्ट्रेटजी रेफर्स टू दोज प्लान्स which an organization prepares to face various situations, threats and opportunities. For example, techniques adopted by an organization for marketing or sales promotion. ठीक है, मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन के लिए जो टेक्निक अडॉप्ट कर रही है वो क्या है, उसकी स्ट्रेटजी है। इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड डेस्टिनेशन, डायरेक्शन एंड इमेज। तो क्या है ब्लूप्रिंट, क्या है
उसके डेस्टिनेशन का, उसके डायरेक्शन और इमेज का, कि वो क्या डायरेक्शन फॉलो करने वाले हैं और ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है। नाउ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का आंसर कर रहा है क्वेश्चंस का, लाइक वेयर इट इज द ऑर्गेनाइजेशन नाउ एंड वेयर डज इट वांट टू बी इन द फ्यूचर, कि आज कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन और फ्यूचर में कहाँ होना चाहती है। व्हाट इट मस्ट डू टू रीच द डिजायर्ड पोजीशन, और इसको क्या करना चाहिए उस डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचने के लिए। एक्शन ओरिएंटेड है आपका एंड इज मोर स्पेसिफिक देन ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव से ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं हमारी स्ट्रेटेजीज। और strategies formulation is done at the top level of management. Now, what are the characteristics or features of strategy? Strategy is long term in nature, जबकि इसके शॉर्ट टर्म implications भी होते हैं। शॉर्ट टर्म implications क्या हुए? लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो आप इसको, पर इसके जो प्रभाव हैं, जो इसके असर हैं, वो शॉर्ट टर्म में आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, it is action oriented and is more specific than objectives. It is generally formulated at the top level of management और it is flexible and dynamic. ठीक है, हमने देखा कि वो हम अपने कंपिटिटर्स की पॉलिसीज को देखते हुए हम उसको बना सकते हैं, चेंज करेंगे उसको, और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको चेंज भी करेंगे। तो क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, जैसे टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं आपके मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन के लिए, वो क्या है, स्ट्रेटजीज हैं कि क्या टेक्निक्स यूज होंगी उसकी मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन के लिए। लाइक हल्दीराम की स्ट्रेटजी क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स लेटर स्ट्रेटजी, फोकस ऑन ऑथेंटिक टेस्ट, कंसिस्टेंट क्वालिटी, हाइजीन, अफोर्डेबल, डाइवर्स स्नैक्स ऑप्शन। तो क्या है, ऑथेंटिक है टेस्ट, यानी कि जैसा टेस्ट है उसको वैसा ही सिमिलर रखना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट क्वालिटी, और हाइजीन, अफोर्डेबल होना चाहिए प्रोडक्ट ताकि, और डाइवर्स स्नैक ऑप्शन, और बहुत तरह की स्नैक्स ऑप्शन उन्होंने रखी हुई है। बीकानेर वाला या बीकानर्स जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल जो है इंडियन टेस्ट विद मॉडर्न एफएमसीजी स्टैंडर्ड्स। तो क्या ट्रेडिशनल टेस्ट को इंटैक्ट रखते हुए जो मॉडर्न एफएमसीजी स्टैंडर्ड्स हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स के साथ उसको यूटिलाइज करना, जैसे हाइपर लोकल और हाइपर लोकल टू ग्लोबल अप्रोच। ठीक है, हाइपर लोकल से ग्लोबल अप्रोच तक। और ज्ञानीज जो है हेरिटेज मीट मॉडर्नाइजेशन। तो ज्ञानी का क्या स्ट्रेटजीज है कि हेरिटेज मीट्स मॉडर्नाइजेशन, कि हमारी जो है पुरानी चीज़ों को यूज़ करके वो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, और उनकी आइसक्रीम्स जो है वो उसी मॉडर्नाइजेशन फॉर्म में कराया जाता है, जो प्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर्स को, लाइक फ्रूट आइसक्रीम्स एंड अदर सॉर्ट ऑफ आइस कुल्फीज एटसेट्रा। निरमा वॉशिंग पाउडर जो था आपका, जो रेवोल्यूशनाइज्ड हुआ था इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को, उसने रेवलाइज किया, और उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, अफोर्डेबिलिटी, डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स एंड टारगेटेड मार्केट। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रेटजीज। नाउ नेक्स्ट इज द पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, दिस आर रिलेटेड टू डिसीजंस। अ पॉलिसी इज जो जनरल स्टेटमेंट है दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो डिसीजन मेकिंग को आपके इफेक्ट करते हैं। पॉलिसीज डिफाइंस द बाउंड्री विद इन विच डिसीजंस कैन बी मेड एंड दे डायरेक्ट डिसीजन टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो डिसीजंस क्या बता रहा है कि किन बाउंड्रीज में डिसीजंस लिए जा सकते हैं, एंड क्या डायरेक्ट करता है डिसीजंस टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो डिसीजंस लेता है ताकि ऑब्जेक्टिव जो हैं अकम्प्लिश हो सके। फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स पॉलिसी इज नॉट टू ग्रांट अ फ्रेंचाइजी टू एन इंडिविजुअल हु ऑलरेडी ओन्स अनदर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो अगर मैकडोनल्ड की पॉलिसी क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल को अगर फ्रेंचाइजी चाहिए और वो ऑलरेडी किसी और दूसरे फास्ट फूड रेस्टोरेंट को रन कर रहा है, तो उसको आपका मैकडोनल्ड का जो है फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। दिस इज देयर पॉलिसी। पॉलिसी जो है वर्बल, रिटन और इम्प्लॉयड ओवरऑल गाइड है, जो कि बाउंड्री सेट करती है, आपके जनरल लिमिट सेट करती है और डायरेक्शन देती है मैनेजरियल एक्शन को। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, कोई क्रेडिट सेल्स नहीं देंगे वो,
ठीक है, प्रोडक्ट्स आर टू बी सोल्ड ऑन कैश बेसिस, या फिर किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को वो क्रेडिट पे नहीं देंगे, या फिर उनकी पॉलिसी है कि प्रमोशंस जो हैं वो इंटरनली फिल की जाएंगी, एक्सटर्नल से फिल नहीं की जाएंगी। आपके जो मेन एम्प्लॉयज, जो हायर लेवल एम्प्लॉयज को अगर लेना है आपको, तो वो आपका जो है इंटरनल ही आपका प्रमोट करके करा जाएगा, और लोअर लेवल आपके एम्प्लॉयज हैं वो बाहर से एम्प्लॉय किए जाएंगे, राइट। सो पॉलिसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान होते हैं, यानी कि आप बार बार इसको रिपीट करके यूज कर रहे हो। स्टैंडिंग आंसर है हमारे कुछ रिकरिंग प्रॉब्लम का, ओके, कि क्या करना है। पॉलिसीज जो हमारे ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं एज टू हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस आर टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट्स द डेस्टिनेशन एंड पॉलिसीज प्रोवाइड द रूट। तो ऑब्जेक्टिव जो है कि क्या पहुंचना है, और पॉलिसीज बताती हैं कैसे पहुंचना है, ठीक है, किस रूट से जाना है आपको, दैट इज द पॉलिसी। तो हमने पॉलिसी बनाई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जैसे है कि प्रोडक्ट क्रेडिट पे सेल नहीं करना है, ठीक है, और प्रोडक्ट उधार में खरीदना भी नहीं है, ना उधार खरीदना है ना उधार बेचना है। प्रमोशंस जो है इंटरनली होंगी, एक्सटर्नल जो है सिर्फ जो लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें हम एक्सटर्नली एम्प्लॉय करेंगे, और हायर लेवल को इंटरनली ही प्रमोट करके उन्हें करा जाएगा। सो दीज आर व्हाट कॉल टू बी पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव जो इंडिकेट करते हैं डेस्टिनेशन, एंड पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रूट। Policies are models of thought and principles underlying the activities of an organization. They guide the decisions and behavior of the executive. तो क्या होता है, किसी का डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर एग्जीक्यूटिव का डिसाइड करता है। तो हमने जब पॉलिसी बनाई तो उस पॉलिसी को फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ पॉलिसीज क्या है? दे आर ब्रॉड गाइड्स एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर एग्जीक्यूटिव जजमेंट और डिस्क्रिशन। पॉलिसीज जो है ऑर्गेनाइजेशन की सभी लेवल्स पे होती हैं आपकी, जिसमें हम कह सकते हैं आपकी मेजर पॉलिसीज होती हैं जो कि आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, फिर डिपार्टमेंटल पॉलिसीज हैं, फिर माइनर पॉलिसीज हैं, ठीक है। जैसे मैकडोनल्ड्स की पॉलिसी है नॉट टू ग्रांट फ्रेंचाइजीज टू एन इंडिविजुअल हु ऑलरेडी ओन्स अनदर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ज्ञानी पॉलिसी इज हाई क्वालिटी ऑथेंटिक रेसिपी, affordable middle class, friendly pricing and strong centralized support in marketing and operations, ठीक है। और हल्दीराम पॉलिसीज क्या है? इज मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर स्नैक्स एंड स्वीट्स, ऑपरेटिंग प्राइमरली ऑन अ नो रिटर्न पॉलिसी फॉर पेरिशेबल्स। जो पेरिशेबल्स हैं उनके लिए नो रिटर्न पॉलिसी भी उन्होंने रखा है कि पेरिशेबल जो खराब हो सकते हैं, सो दे आर नॉट रिफंडेबल और रिटर्नेबल। नाउ so we are ending this chapter here only. So the rest of the part, the rest of the plans we will do in the next part of the video. I hope you are just enjoying studying with me, and continue your work, continue your revision, and keep on sending me your opinions in the comment box, and keep on like sharing and liking the video, and subscribe if you have not subscribed till now. Thank you, students.